Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are doing well. So today is going to be a very quick reminder about mindful gratitude. If we look around us, then there are so many blessings that we cannot even count them. अल्लाह ताला ने इतनी blessings दी हुई हैं और देते जा रहे हैं कि अगर हम लिस्ट बनाना शुरू करें ना तो हम थक जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला की blessings को हम काउंट नहीं कर सकते because they are endless blessings. But the thing is, how many times do we thank Allah subhanahu wa ta'ala for all those blessings mindfully, wholeheartedly? So it's very important that we pause from our busy routines and just thank Allah mindfully, wholeheartedly for the blessings that He's giving us. The blessings which are tangible, intangible, the blessings that we asked for and didn't ask for. जो अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ही दे दी जो हमने मांगी भी नहीं थी, और जो हमें मांगे की वो भी दे दी. There are few levels through which we express our gratitude. The first level is that we recognize all the blessings at the level of our heart. यानी हम दिल से महसूस करें कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या blessings दी हुई हैं. So that is one level of expressing gratitude, कि हमें दिल से महसूस हो कि अल्लाह ताला ने क्या क्या दिया हुआ है, हम recognize करें उन blessings को. And then there is another level and in which we express our gratitude through our tongue. यानी it's a verbal expression कि जिससे हम अपनी नेमतों का शुक्रगुजारी करते हैं. Just like कि अगर आपको कोई blessing मिली है, आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. But the thing is कि most of the time हम जब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो हम आदतन कह रहे होते हैं. We don't say it mindfully or wholeheartedly. We don't know what we're saying. हमें उसका मीनिंग पता होता है. कई बार होता है ना, when we meet somebody, कोई हमसे हमारा हाल पूछता है या फ़ोन पे भी, तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो हम मोस्टली आदतन कह रहे होते हैं. और अगर हम दिल से कह रहे हो तो उसके बाद लंबी कंप्लेंट्स की लिस्ट ना हम बता रहे हो लोगों को. सो एक तो हमें ये भी चेक करना है कि क्या वाकई हम माइंडफुली, wholeheartedly do we say alhamdulillah. So that's one level, which is the second level, in which you express gratitude through your tongue. You say alhamdulillah for the blessings that you receive. And then there is another level, and it has to do with our entire being. In this level of gratitude, we use our entire being to thank Allah subhanahu wa ta'ala. This level of gratitude, it actually compels us to use all those blessings in ways which are pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala. जो भी अल्लाह ताला ने blessings दिए ना, अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम certain way में उन blessings को use करें. So our entire body should be involved in using those blessings the way they need to be used. जिस तरह से अल्लाह ताला चाहते हैं हम उन्हीं तरह से उन blessings को यूज़ करते हैं. So this is another level of gratitude. So we need to ask ourselves कि क्या हम इन सारे levels पे gratitude कर रहे हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं. ये first step तो है कि we need to recognize the blessings that we have. तो उसके लिए what we can do is कि we can have a gratitude journal. daily basis पे हम कुछ blessings को लिखना शुरू करें, और ना भी लिखें तो एटलीस्ट हम बोलना शुरू करें उस पर कि हमें अल्लाह ताला ने क्या क्या दिया हुआ है. बैठें, सोचें डेली बेसिस पे, एंड डू दिस एक्टिविटी माइंडफुली. और सबसे बड़ा शुक्र तो ये है कि व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, व्हेन वी रिसाइट दिस दुआ, मॉर्निंग दुआ, तो उसमें क्या हम डू वी रिसाइट इट माइंडफुली या बस एक आदतन उसको पढ़ रहे हैं, रिचुअल बन गया है एक. तो क्योंकि अल्लाह ताला ने एक और सुबह दी, एक और दिन दिया, सो वी कैन ऐड मोर गुड डीड्स इनटू आवर अकाउंट ऑफ आखिरा. तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है. सो वी नीड टू थैंक अल्लाह सुब्हानहू व तआला माइंडफुली फॉर दिस इन द मॉर्निंग. लाइक वन मोर थिंग दैट वी कैन डू इज़ कि 5 times a day we get this opportunity when we can mindfully thank Allah subhanahu wa ta'ala through this verbal expression, जिसमें हम हर नमाज
नमाज के बाद 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये तस्बीह करते हैं. सो वी कैन मेक इट अ माइंडफुल एक्टिविटी. लाइक 33 टाइम जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो हर अल्हम्दुलिल्लाह पे हम अल्लाह ताला की कोई ना कोई ब्लेसिंग को याद करें कि अल्लाह ताला ने ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है. सो सुभान अल्लाह, इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्टिविटी. फिर एक चीज़ याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने ये कहा है ना कि इफ़ यू आर ग्रेटफुल आई विल गिव यू मोर. जो शुक्रगुजारी है वो नेमतों को बढ़ाती है. लेकिन आपको पता है कि शैतान की बिगेस्ट जो स्कीम है वो क्या है, कि ही वॉन्ट्स टू इनकलकेट इन ग्रैटिट्यूड इन अस. वो हमारे अंदर नाशुक्री को लाना चाहता है. वो हमें ये फील कराना चाहता है कि द ब्लेसिंग्स दैट वी हैव आर नॉट गुड इनफ. हमारे पास इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स नहीं है, या जो मिला है वो कम मिला है. So we need to strive against this scheme. We need to be more grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. So we need to mindfully think about all the blessings that we have. पहले तो recognize करना at the level of our heart, फिर उसके बाद verbally express करना, and then अपनी body से अपनी शुक्र का इजहार करना कि अल्लाह ताला ने क्या क्या दिया है, and we are thankful, mindfully हर तरह से. So on daily basis, we need to start our day mindfully by reciting the dua, the morning dua, and then just write down the blessings, like 5 or 6 blessings, जितनी भी आप लिखना चाहें daily basis पे. And then throughout the day, just observe around you the blessings that you have, tangible and intangible, जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, और उस पर शुक्र करते जाएं और अल्लाह ताला नेमतों को बढ़ाते जाएंगे. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अस्सलाम वालेकुम.